اس میں دو تین چیزیں ہیں جو کہ نیگیٹو ہی ہیں. ایک جن اور شیطان والی بات. تقریباً ہماری مسلمان خواتین اور چودھری اسلم کی والدہ مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتی ہے. انہوں نے کہا کہ جن اور شیطان کے عمل سے 9 مہینے بعد ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جسے چودھری اسلم کہتے ہیں. ایک شیطان اور ایک جن میں زبردست سیکس ہوا. 9 مہینے بعد جو پیدا ہوگا اس کا نام پڑا چودھری اسلم. یہ چیز سوٹیبل نہیں. اس کا مقصد انہوں نے فلم میں نے دیکھی نہیں سنا کہ چل کر یہ بیان کیا کہ چودھری ایک جن جیسی پاور رکھتا ہے, اس کے آگے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا, کہ اس کی دلیری کی مثال بھی ہے ایک جگہ, مگر لفظوں کا چناؤ غلط. دوسرا یہ تھا کہ چودھری اسلم کبھی بلٹ پروف جیکٹ میں نہیں دیکھے. تمام میڈیا کے اوپر کلپس بھی ہوں گے تو میں نے نہیں دیکھا, مگر فلم میں یہی دکھایا کہ وہ جیکٹ پہن کر آتا ہے. سنجے دت میں کبھی ایکٹر کے خلاف نہیں ہوں. اس کو اسکرپٹ دیا, اس نے ایکٹنگ بہت اچھی کی, اور اس میں ججا چودھری کا رول ایز اے کافی میچ ہے اس کے اوپر. تو باقی لہری کے اندر کی جو بات کر رہے ہیں 2008-9 اور 8 اگست کی ملی جلی رات کاٹیوار روڈ پر انکاؤنٹر رحمان کا, آپ سارے لٹھے سر پہ باندھ لیں تو سارے سردار. بیک گراؤنڈ میں جائیں, ان کے جو سٹارٹ ہیں وہ سب کو سینئر رپورٹرز جانتے ہیں, حاجی لالو سے لے کر ان کی والدہ ہو گئی یا ان کی فیملیز ہوگی. کیا ہے اب سارے اگر کہیں ہم بھی سردار, چودھری اسلم بھی خان, میں ملک, ایسا نہیں ہوتا نا. کرمنل ہوتا ہے, اس کا ریکارڈ تھا, آپ سب کو پتہ ہے. اور چودھری اسلم کے اوپر ایک داغ تھا. 2006 میں یہ جیل گئے, یاد ہوگا. جی بالکل, جو فرار ہو گئے تھے. ہاں, اس وقت بہاؤالدین بابر سے فرار ہے. چودھری اسلم کی کسٹڈی نہیں تھی, صرف نام چودھری. اریسٹ چودھری نے لاہور سے کر کے لایا تھا. یہ چیز ابھی اوپنلی نہیں آئی تھی, مگر بہاؤالدین بابر کی کسٹڈی میں رکھا گیا ان کے گھر کے بیسمنٹ میں. وہاں سے جو توڑ جوڑ اس کا ہوگا ایجنسیوں کو پتا ہوگا, مگر چودھری اسلم کو کلیئر کیا گیا. دھوم چینل ہوتا تھا اس ٹائم, اس پہ آیا کہ چودھری اسلم کلیئر ہے. تو چودھری اسلم نے ملک کے ساتھ کبھی غداری نہیں کی. اگر ملک کے ساتھ غداری اور پیسہ لینے والا ہوتا تو آج اس کی فیملی یہاں نہ ہوتی, امریکہ لندن بیٹھی ہوتی, بہت ساری کمپنیاں چلا رہی ہوتی میرے خیال. تو میں آج یہ میں نہیں کہتی, میں چودھری اسلم کے کریکٹر کو لے کر 12 برسیوں کی صورت میں ابھی 12ویں آئے گی, تو میں نے ہمیشہ اس کو یادگار بنایا ہے, اور پاکستان کے میڈیا نے بھی اس کو ہمیشہ یادگار رکھا ہے. ہمارا میڈیا ہمیشہ چودھری کے لیے 1-2 لوگوں کو چھوڑ کر باقی پازیٹیو رہا. وہ پاکستان کا نیشنل ہیرو ہے. جب میں دبئی میں تھی تو مجھے کال آئی تھی کہ اگر آپ اجازت دیتی ہے تو سلمان خان چودھری پہ مووی بنانا چاہتے ہیں. میرا جذبہ اپنی مٹی کے ساتھ, میں نے کہا یہ پاکستان کا حق ہے کہ وہ چودھری پہ مووی بنائے. تک میں نے جو سنا وہ کردار اگر نیگیٹو ہوتا تو پھر میں بتاتی. فی الوقت تک تو ایک مضبوط ترین شیر دل آدمی کا دکھایا ہے. رحمان بلوچ ڈکیت اتنے جوگا نہیں تھا جتنا بنا ڈالا انہوں نے. چودھری اسلم آپ لوگ بھی ساتھ چلے ہو, کہاں نہیں لڑاؤ, اس سے کئی گنا اوپر, جس سے مختلف ممالک ڈرتے ہوں. چودھری تو وہاں بھی جا کے ڈٹ کے کھڑا ہو گیا. اس نے اپنی آخری سفر تک, آخری پریس کانفرنس, آخری رات تک شہادت کی, کوئی چیز روکی ہی نہیں. اگر یہ سمجھتے, یہ ایک الزام تھا چودھری اسلم پہ جب جیل والا ٹائم تھا کہ چودھری نے 10 کروڑ لے لیا. چودھری کی ضمیر کی عدالت یہ نہیں ہے. اس وقت بھی ہمارے ادارے بیٹھے ہوئے تھے, وہ ضرور ڈکلیئر کرتے کہ چودھری غدار ہے, ملک کا نہیں, بکاؤ مال ہے. چودھری بکا نہیں. چودھری ایک پٹھان مرد تھا, اس نے ایک وعدہ کیا کہ میں اس عوام کے لیے جان دے کے گزروں گا اور یہ لوگ مجھے صدیوں یاد رکھیں گے. اور یہ بھی ضرور کہا تھا کہ میرے اوپر موویاں بنیں گی. وہ چیزیں 2-3 چیزیں جو اس نے کہیں وہ عمل میں آئیں. باقی ڈپارٹمنٹ کو بھی اچھی طرح پتا ہے کہ چودھری اسلم کیا تھا ان کے لیے, اور پاکستان کے تمام لوگوں کو. بلکہ امریکہ نے ڈٹی ایری کا خطاب دیا اور UK نے سپر کوپ کا دیا. میں نے ابھی کچھ ایک لائن سنی, میں نے پروگرام نبیل گبول صاحب کا نہیں دیکھا, وہ سیاست کے میدان میں. چودھری اسلم ایک آفیسر ہے سرکاری, سندھ پولیس کا جوان. وہ یہ کہتے ہیں جی میں لیاری اترا, پیچھے لوگ ہی نہیں تھے, چودھری صاحب نہیں تھے. آج میں تمام آپ اس وقت بھی چودھری سے کریکٹ رہے ہیں میرے خیال میں. چودھری دھماکوں سے گھبرا گیا, کبھی نہیں گھبرایا. تو بولے چودھری اسلم پیچھے آئے ہی نہیں. چودھری اسلم جبکہ بغدادی تھانے میں نے CID سے پرسوں کل بات کر کے پوچھا کہ میں بیان دینے جا رہی ہوں, میں ڈرتی کسی کے باپ سے بھی نہیں,
ना मैं गलत औरत हूँ। उन्होंने कहा चौधरी असलम बैठे हुए थे बगदादी। मैंने कहा बगदादी थाना कहाँ पे है? गुलशन में। वो जो कहते हैं, बोला चौधरी साहब ने 2 मोबाइलें बेची हैं बाद में, ये वो भी क्लियर करे। बाकी चौधरी असलम अपना मौक़िफ़, अपने इरादे और अपनी चीजों को नहीं बदलता, वो अटल मर्द है। जब बम ब्लास्ट हुआ था सुबह 7:28 पे 11 सितंबर, डिफेंस वाला वाकया, और सब जो भी जजमेंट हुई, जितनों ने बम ब्लास्ट, जो भी चेक करने वाले डिस्पोजेबल जो होते हैं वो आए, उन्होंने कहा कि 350 किलो गड़ा इतना गहरा। जब सिस्टम रुक गए 3 मिनट 5 मिनट, जब वहाँ ब्लास्ट होता है आप भी जानते हैं, मोबाइल बंद हो जाते हैं। जैसे ही बहाल हुए, मैंने कहा चौधरी, मैं ऊपर ही थी, चीजें समेट रही थी काफी, तो ख्याल आया चौधरी नंगे पाँव ही रोड पे जो कर रहा था, सबने सुना होगा बाद में। मैंने कहा चौधरी आज मर्द बन जाना, आज जवाब बड़ा क्लास का देना। तैनाती को छोड़े, चौधरी ने इलाके छोड़कर भी बड़े ऑपरेशन किए। चौधरी ने तो शाहिद की कॉल पे भी बड़ा टाइट जवाब दिए। वो बड़ा है, रहमान बड़ा है, जवाब दे सकता है कोई बंदा। गालियां दी हैं उसने, आप देखें सोशल मीडिया पे 2 महीने शहादत से पहले, कि हाँ मैं कफन बंद कराऊंगा कराची क्लियर करने के बाद। तू मर्द है तो तू आजा, तुझे मैं मेवाशा में गाड़ दूंगा। मर्द सारे फोर्सेस में भी हैं, और दहशतगर्द दूसरे भी हैं जो छोटे जराइम वाले, जो कहते हैं हमने कुछ नहीं किया। रहमान एक इलाके तक महदूद था, कराची में पर्ची बंटती थी, बाकी कैरेक्टर पुलिस को भी पता है और रिपोर्टर्स को भी पता है। चौधरी पर्ची नहीं बांटता, चौधरी के ऊपर दाग लगाएंगे तो चौधरी ऐसा ही है। चौधरी खुद तो नहीं है ना, चौधरी को दिया गया टास्क है, टास्क आईजी सिंध देता है, ठीक है। किसी की हुकूमतों के टास्क चौधरी कबूल कर ही नहीं सकता, डिसिप्लिन फोर्स का हिस्सा है वो। बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ करा के मुझे डराना चाहते हैं कि मैं इन चीजों से बाज आ जाऊंगा। शेर के मुंह में हाथ डाला है, इनकी नस्लें भी याद रखेंगी कि इनको कौन मिला है, इनकी मैं नस्लों को तबाह कर दूंगा। तो जहाँ पुलिस एक साइड होती है वहाँ चौधरी असलम आता है। क्यों? उसके बीवी बच्चे, उसके माँ बाप नहीं थे। अगर औरों के हैं तो इसके भी है ना भाई। अगले बंदे को पता है, बिजनेस प्लस में बैठकर उसने बोला मुझे गोली थोड़ी मारेगी, मैं बम ब्लास्ट होगा तो मैं शहीद हो जाऊंगा। ये एंकर था, उसने मुझे कहा, बोला चौधरी साहब तो ये बयान दे रहे थे। तो मैंने कहा होगा, हुआ भी तो वही है ना। 11 हमले हैं टोटल लाइफ के इसके ऊपर। अगर उसका घर उड़ गया था, सारा कुछ मलिया मेट हुआ, चौधरी घबरा के एक कोने में बैठा हुआ था। ये मीडिया ने कहा कोई और मर्द होता बोरिया बिस्तरा उठाता और पाकिस्तान छोड़ दे। खतरनाक शदीद किस्म के हमले। उस वक्त उसका वलवला था। मैं कहती हूँ मर्द मुजाहिद ऐसे ही होते। इनको फोन किया, इन्होंने हमें उसी जगह पे छोड़ दिया। बच्चे शिफ्ट हो गए, लोगों के घरों में डाले। मैं अपने गार्ड है, जब मैंने उसकी हालत देखी मुझे उम्मीद नहीं थी बचने की, वो आज भी मेरे पास है। उसको मैं सलाम करती हूँ। उसने कहा उठाओ मेरी वर्कर लेडी को, बच्चों को हटाओ, दूसरा ब्लास्ट हो सकता है। वो बेचारा, उसकी कोई जगह बची नहीं थी जख्मों से, मतलब 4-5 प्लॉट आगे जाके गिरा उड़ के। उसका दिमाग देखिए, चौधरी तो था ही था, ऊपर से आया वलवला अंगेज सारा कुछ। मुझे फजर की दूसरी सुबह मिला, आप घबराई तो नहीं है? मैंने कहा नहीं, बहुत जज्बाती हूँ मैं। उस वक्त मुझे असलम ने रोका, मीडिया ने मुझे घेर लिया था। मैंने कहा मैं घर की काम करने वाली लेडी हूँ, मुझे मना था कि आपने कभी मीडिया पे नहीं आना। बोला आप लगती हैं। मैंने कहा नहीं मैं बच्चों की मेड हूँ। बहरहाल बाद में समी था जियो का, खुल गई बात। मैंने कहा मुझे पाबंदी है, मैं नहीं आ सकती, चौधरी साहब से करे। चौधरी साहब 2 बजे 2:30 बजे जाके ऑफिस बैठ के अपना काम शुरू कर चुके थे। उस बंदे को मैंने कहा यहाँ क्या आलम में, और आप बोला वो लगे रहने दो। नबील गबोल अगर अटैच है या उनकी पिक्चरें ऐसी हुई हैं तो उनको जवाब मीडिया पे आके बैठ के देना चाहिए, ना कि वो यही कहे चौधरी भाग गया था। चौधरी अगर कमजोर था तो फिर ये क्या आलम है। 11.5 साल 12 साल तो मैं चला रही हूँ दुनिया को, और किसी ने नहीं इतना किया जितना एक बीवी ने कवर किया चौधरी को इस मीडिया के साथ। मीडिया 2 चैनल छोड़कर बाकी मीडिया के लोग हमेशा चौधरी के लिए सिंसियर रहे। उन्होंने चौधरी की सच्चाई को माना है। मीडिया के मैं कभी नहीं, मीडिया मेरी आवाज बना चौधरी के लिए। तो बाकी नबील गबोल को अपनी बात अपने बारे में बयान देना चाहिए। पीपल्स पार्टी में आजकल, वो पहले तो चेंज थे, शायद छोड़ गए थे ना। MQ में गए थे, फिर वापस अब पीपल्स पार्टी में आ गए। तो फिर लियारी उन्हीं का इलाका है, तो जवाब वो देना कि मंच पे दिखाया है मोहतरमा बेनजीर भुट्टो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, जबकि कानूनी कार्रवाई ये कर सकते हैं शहीद के खिलाफ मुहतरमा के। ये तो सियासत का हिस्सा है, मैं सियासत का हिस्सा नहीं हूँ। मैंने तो फिर भी हर जगह स्ट्रांगली जवाब दिए। ये मर्द है ना, खड़े होकर जवाब दे कि इंडिया ने मेरे रोल को ऐसे कैसे प्ले किया कि मैं उन दहशतगर्दों से मिला हुआ हूँ।
एक बार कुछ पिक्चरें हमने YouTube पे देखी, इन्होंने वो देखे, उन्होंने नाम मुझसे क्लिक किया कुछ चौधरी के लिए मवाद कि चौधरी असलम क्या रोल है, ना आप जैसे लोगों से जो कनेक्ट रहे चौधरी के साथ, ठीक है, ना सिंध पुलिस से, मुझे नहीं मालूम। अपनी तरफ से उन्होंने एक मूवी बना दी, नबील गबोल को दिखा दिया, रहमान डकैत, मैं रहमान डकैत कहूँगी, सरदार नहीं कहती, जो मशहूर है वो रहमान डकैती है। अगर समाजी कारकुन था तो अब्दुल सत्तारीदी पैदा होता, मगर अब्दुल सत्तारीदी जैसे भी नमाज जनाजा पढ़ाते। मेरी मुलाकात बल्कि ईदी से हुई थी इस मौके पे। मैंने कहा ये क्या है, मैं गई थी उनका इलाका सामने, बोला बेटा हम यहाँ रहते हैं, हम क्या करें। मैंने कहा आप रहते हैं, हम भी बच्चे छोटे रखते हैं उस वक्त, पर हम भी रहते हैं। मैंने कहा ये अफेक्ट क्या पड़ता है, वो सही इंसान था। बोला चौधरी शेर था, मीडिया को उसने सारा हटा दिया, मुझसे उसने एक माँ की तरह प्यार किया। बोला चौधरी की बहुत पसंद करने वाली मैं खातून हूँ, मेरी दुआ थी अल्लाह ऐसे फरिश्ते को जिंदगी दे। मैंने कहा कुछ लोग कुछ पल के लिए आते, जो अपने हिस्से का काम होता है वो करके निकल जाते हैं। और सिंध पुलिस के लिए एक मैसेज है मेरा, शेर बन जाए सारे इस मुल्क में, 15 बंदे भी बन गए ना पूरे पाकिस्तान में, कराची साफ हो जाए। और दूसरी बात ये देखे, यहाँ पे बेनजीर की पिक्चर लियारी की आवाम, रहमान डकैत स्टेज पे बिलावल हो या जरदारी साहब हो या तर्जमान पार्टी के, उनका बयान जारी होना जरूरी था। आदि ने बयान दिया थोड़ा सा कि अब वो वैसा नहीं रहा, वहाँ खेल है, हॉकी है तो फुटबॉल है, बॉक्सिंग है, बच्चे इस टाइप के हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि सारा लियारी गलत है, अवाम नहीं गलत, चंद लोगों ने यरगमाल बनाया था। आप भी कवरेज पे थे शायद वहाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा था। जब ऑपरेशन होते थे वहाँ पर हम कवरेज कर रहे थे, बना लेते थे। तो आगे आप लोग भी बेहतर समझते हैं कि किसका कैरेक्टर क्या रहा। बाकी हमें देखे, मैं चौधरी के कैरेक्टर के ऊपर कभी कंप्रोमाइज नहीं कर सकती। हमने जाने दी उनकी देखी है, हमने अपनी जवानी कुर्बान की है चौधरी असलम पे, मेरे बच्चे, और जो सफर हमने किया वो सिंध पुलिस के अंदर किसी फैमिली ने नहीं किया। तो इसलिए चौधरी के कैरेक्टर के ऊपर अगर नेगेटिव होगा तो लाजमी मैं एक्शन में आऊंगी ना। आप लोग भी जानते हो, सारी उम्र आप मीडिया साथ चलता रहा, चौधरी असलम को कैसा पाया। वो एक तरफ दहशत गर्दों के लिए दहशत की निशानी, दूसरी तरफ मैंने कहा मेरे घर में अल्लाह का वली होता। चौधरी असलम को मैंने इस रूप में देखा है। जरूरी थोड़ा ये है कि अल्लाह को एक इस्लाम के अंदर रहने वाला मर्द खुदा को लोगों ने, तो मैं इस बात पे हैरान हूँ कि जो सोशल मीडिया के ऊपर लोगों ने कमेंट्स करना शुरू किए, 30% लोग जो नेगेटिव है, हमारे खिलाफ हैं, वो क्या मैसेज दे रहे हैं बाहर के लोगों को। आपके मुल्क के ऊपर ही मतलब एक शेरदिली के ऊपर मूवी बन रही है, उनके पास उनके लिए उनके मुल्क के अंदर ऐसा कोई है जो कंटेंट होता तो क्रिएट करके शो करते। चौधरी असलम हो गया या लियारी हो गई या और कितने भी दहशतगर्द हो गए, ठीक है, मगर अगर हर मुल्क में दहशतगर्दी होती है, वहाँ पे एक अल्लाह ऐसा बंदा जरूर खड़ा करता है जो दहशतगर्दी को साफ करता है, तो उसको शेर कहते हैं। मैं ये नहीं कहती मेरी शादी हुई साल के बाद ऐसे गुलबार बने, 12 दिन नहीं आते थे। आज की बंदियां हों या पिछली बंदियां हों, उनके हस्बैंड 4 दिन घर ना आए, मैं पूछूं ना, 3 घरानों को चलाती रही, उनके वालिदैन की भी जिम्मेदारी मुझ पे, मेरे अपनों की भी, मेरे बच्चों की। मैं दुआगो बहू हूँ। आज अगर मुझे इस मंजिल पे एक इज्जत का मकाम अगर आया ना, ये मेरी सास की दुआओं का नतीजा है। अब तो सारे लोग तैयार है ना, बस पका हुआ मिल जाए, सही है, ऐसा नहीं होता, मेहनत से है। आज चौधरी असलम को अगर बहुत सारी चीजें नजर मिल रही हैं, उसकी इज्जत के अंदर भी हैं, जिंदगी भर उसकी इज्जत में इजाफा रहा है, तो उसकी कुर्बानियां बहुत है, वो पीछे नहीं हटा कभी किसी मैदान में, और उसकी फैमिली पूरी सपोर्ट करती रही खड़े होकर। आप लोगों ने सुना कि हम अमेरिका थे, लंदन रह रहे थे, हमारी चौधरी साहब के बच्चे, हम अपने शेरों को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते थे। फैमिली के अंदर अगर एक मर्द शेर गुजरता है तो सारी फैमिली का फख्र है, और मैं कहती हूँ 70% पाकिस्तान का फख्र है। नेगेटिव को छोड़ दे, तकरीबन अगर कहीं भी बात चलती है, जो करीबी जानते हैं वो क्या कहते हैं चौधरी के लिए। मेरे बच्चों ने जरूर देखी है, मैंने नहीं देखी। मैंने कहा कोई भी एक नेगेटिव चीज देखी मैं तो फिर बम ब्लास्ट हो रहा तो फट जाऊंगी। बच्चे तो खुश थे, बच्चों ने कहा मम्मा अभी तक तो कैरेक्टर को अच्छा प्ले किया है, और चैप्टर जब 2 आएगा वो आएगा मार्च 19 को,
तो उसके अंदर पता चलेगा दी एंड चौधरी का क्या है। बात सुने जी, चौधरी अपने आप में एक आदमी था, मर्द था, मैं अपने आप में एक औरत हूँ। बाकी सिंध पुलिस की तरफ से मेरी नफरी है, जो बात सच। बाकी तमाम मामलात मैं खुद तय करती हूँ, हर चीज पे। ये मेरे गार्ड जानते हैं कि मुझ में एक मर्द औरत बसती है, और बाकी नेगेटिव जो बातें करते हैं उनको मैंने कहा, चैलेंज किया, मेरा मुकाबला करना, मुझे रोड पे बुला ले। सोशल मीडिया पे गंद न करे। आप दुश्मन मुल्क को क्या मैसेज दे रहे हैं?